شروع خدائے ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو بڑا غفور الرحیم ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ سچ اسپیشل پروگرام کے ساتھ میں ہوں ساجد آوان۔ میں اس وقت کرتارپور بارڈر پر موجود ہوں۔ اس وقت میرے عقب میں آپ کو جغرافیائی اعتبار سے پاکستان اور انڈیا کی جو بارڈر لائن ہے وہ نظر آ رہی ہوگی۔ اس لائن سے اس جانب جہاں پہ میں موجود ہوں یہ حصہ پاکستان کی حدود میں آتا ہے، اور اس لائن کی دوسری جانب ہندوستانی حدود ہے، جہاں آپ کو ہندوستانی فوج کی چیک پوسٹیں اور ہندوستانی افواج کے جوان گشت کرتے دکھائی دے رہے ہوں گے۔ اسے کرتارپور کوریڈور بھی کہا جاتا ہے۔ پاکستانی گورنمنٹ اور افواج پاکستان کی جانب سے کرتارپور کوریڈور کے ذریعے گردوارہ دربار صاحب کرتارپور کے اندر آنے والے تمام یاتریوں کو پورا سال بغیر کسی ویزا کے صرف قانونی ڈاکومنٹس کی جانچ پڑتال کے بعد آنے کی اجازت ہوتی ہے۔ ہر سال یہاں پر بابا جی گرو نانک دیو جی کے جنم دن کی تقریبات کے حوالے سے جو ہزاروں کی تعداد کے اندر سکھ یاتری ہیں وہ بھی یہاں پہ گردوارہ دربار صاحب پہنچتے ہیں۔ اس کے علاوہ واگا بارڈر سے اس دفعہ 3000 کے قریب سکھ یاتری جو ہیں وہ پاکستان ان تقریبات کا حصہ بننے کے لیے پہنچے ہیں، اور پوری دنیا سے بھی سکھ یاتری بابا جی گرو نانک دیو جی کی تقریبات میں شمولیت کے لیے پاکستان پہنچتے ہیں۔ جی میرے عقب کے اندر جیسے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ سامنے تھینکس فار وزٹ شری کرتارپور صاحب کوریڈور، یہ لکھا آپ کو ہندوستان کی حدود ہے وہاں پر سامنے آپ کو یہ بورڈ نظر آ رہا ہوگا۔ اگر آپ پاکستانی حدود کی طرف آئیں تو اسی طرح جو سکھ یاتری بابا جی کے جنم دن کی تقریبات کے لیے یہاں پاکستان آ رہے ہیں ان کے ویلکم کے لیے یہاں سامنے بھی جو ہے وہ بورڈ آویزہ کیے گئے ہیں، تاکہ جتنے بھی سکھ یاتری پاکستان اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے بابا جی گرو نانک دیو جی کے جنم دن کے موقع پر درشن کے لیے آ رہے ہیں ان کو ویلکم کیا جا سکے۔ ابھی ہم یہاں سے گردوارہ دربار صاحب کرتارپور جائیں گے، اور وہاں جو ہے جتنے سکھ یاتری چاہے وہ واگا بارڈر کے ذریعے پاکستان پہنچے ہیں یا کرتارپور کوریڈور کے ذریعے، ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ آج بابا جی گرو نانک دیو جی کی جنم دن کی جو تقریبات ہیں اس میں شامل ہو کر وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ یہاں زیرو لائن پر پاکستان اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر سید افتخار حسین نقوی بھی موجود ہیں۔ چلیے ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ اچھا سلسلہ کیا پاکستان نے سکھ برادری کے لیے کہ وہ یہاں کرتار سنگھ آویں تو کرتار بارڈر پر آ کر اور اپنی جو بھی ان کی رسمیں ہیں ادا کریں، اور پاکستان نے بڑے کھلے دل سے اس کو انتظام کیا ہے اور اس کے لیے اہتمام کیا ہے، اور ماشاءاللہ یہاں پر ہمارے عزیز ہمارے بھائی رینجر کے ہوں یا پولیس والے بھی تو سب یہ انتظام کرتے ہیں بہترین، اور یہ ایک اچھا میسج جاتا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کو بھی چاہیے کہ اسی طرح وہ اپنا دل جو ہے وہ کھلا رکھے، اور تعصب سے ہٹ کر جس طرح سکھ برادری کے لوگ یہاں آتے ہیں، تو جب پاکستان بنا اور مشرقی پنجاب سے مسلمان ہجرت کر کے یہاں آ گئے تو مشرقی پنجاب میں بہت سارے مزارات ہیں، بڑی تاریخی مساجد ہیں، اور خاص کر سادات جو وہاں پر گئے ان سادات کے مزار بھی ہیں۔ ہمارا تعلق جو ہے نقوی سادات سے، نقوی سادات کی بہت ساری وہاں یادگاریں ہیں۔ تو انڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستان میں آنے والے مشرقی پنجاب سے جو افراد ہیں ان کے لیے خصوصی رعایتی پیکج ہو کہ وہ جا کر مشرقی پنجاب کا دورہ کریں، اپنی یادگاریں دیکھیں، اپنے مزارات پر جائیں، فاتح خوانی کریں، اور جو رسومات ہیں اسلامی ان کو ادا کریں، تو اس سے پیار اور محبت کی فضا اور بڑھے گی۔ اور اس کے لیے ہماری سکھ برادری کو چاہیے کہ وہ بھی اس کا مطالبہ کریں اپنی حکومت سے کہ ان مسلمانوں کو، ویسے تو انڈیا جاتے رہتے ہیں مسلمان، لیکن اس کا ایک علیحدہ پروسیجر ہے۔ میں خصوصی طور پر مشرقی پنجاب سے جو آئے ہوئے مسلمان ہیں مغربی پنجاب میں، ان کے لیے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے ایک خصوصی پیکج جو ہے وہ دیا جائے۔
गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर सिख मजहब के लोगों के लिए इंतहाई अकीदत व एहतराम की जगह के साथ साथ पूरी दुनिया में बसने वाले हर मजहब के लोगों के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी अवाम और अफवाज पाकिस्तान की जानिब से हर मजहब के लोगों के लिए मजहबी आज़ादी के गैर मुतज़लज़ल नज़रिए का आकाश भी है। इस वक्त मेरे अक़ब में जो आपको कदीमी बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये गुरुद्वारा दरबार साहब की सबसे कदीमी बिल्डिंग है, जो कि 1920 के अंदर तामीर की गई। उससे पहले गुरुद्वारा करतारपुर की अगर मैं तारीख की बात करूं तो बाबा जी गुरु नानक देव जी ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 18 बरस यहाँ करतारपुर के अंदर गुजारे। 1539 के अंदर जब बाबा जी गुरु नानक देव जी का इंतकाल हुआ तो उस वक़्त के लोगों के मुताबिक बाबा जी गुरु नानक देव जी की जो डेड बॉडी है वो डिसअपियर हो गई थी और एक कपड़ा और चंद फूल जो है वो बचे थे। उस वक़्त यहाँ दो मज़ाहिब के लोग आबाद थे, एक हिंदू और मुस्लिम। उस वक़्त उस चादर और फूलों को दोनों मज़ाहिब में तकसीम कर दिया गया। जो मुसलमान हैं उन्होंने उस कपड़े और फूलों की तदफीन कर दी और वहाँ पर मज़ार बना दिया गया, और हिंदू मज़हब के लोगों ने अपने अकायद के मुताबिक उस कपड़े और फूलों का संस्कार कर दिया और बाबा जी गुरु नानक देव जी की समाधि बना दी। ये जो मेरे अक़ब के अंदर आपको कदीमी बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये 1920 के अंदर जो पटियाला के महाराज थे भूपिंदर सिंह महाराज, उन्होंने इसे 1920 के अंदर तामीर करवाया था। इससे कबल 1539 के बाद यहाँ पर बाबा जी गुरु नानक देव जी का जो है यहाँ पे गुरुद्वारा, उसकी एक बिल्डिंग बनाई गई थी जो कि दरियाए रावी में सैलाब आने की वजह से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई थी। उसके बाद 1920 के अंदर पटियाला के महाराज भूपिंदर सिंह महाराज ने इस इमारत को दोबारा से तामीर करवाया और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से 1995 में इस इमारत की दोबारा से रेनोवेशन करवाई गई, इसकी मुरम्मत करवाई गई। और इसके अलावा जो इस वक्त आपको यहाँ गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर की ये बहुत बड़ी जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, इसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से 2019 के अंदर तामीर करवाया गया। इस इमारत का जो असल मकसद था वो ये था कि जो इंडिया के अंदर सिख मज़हब के मानने वाले करोड़ों की तादाद के अंदर लोग हैं, वो अपने रूहानी पेशवा बाबा जी गुरु नानक देव जी के दर्शन के लिए वीज़ा प्रोसेस करके पाकिस्तान आते थे, जो कि एक लंबा प्रोसेस था। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से सिख मज़हब के अकायद रखने वाले और सिख मज़हब को मानने वाले लोगों की बाबा जी गुरु नानक देव जी के हवाले से अकीदत व एहतराम को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया गया कि यहाँ पे करतारपुर कॉरिडोर से बग़ैर किसी वीज़ा के जो सिख यात्री हैं वो पूरा साल गुरुद्वारा दरबार साहब के अंदर आ सकेंगे। सिर्फ जो कानूनी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जांच पड़ताल के बाद बग़ैर किसी वीज़ा के $20 की फ़ीस अदा करके जितने भी यात्री हैं वो रोज़ाना सुबह से शाम की बुनियाद पर यहाँ गुरुद्वारा दरबार साहब के अंदर आ सकते हैं। यहाँ आज गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर के अंदर जो है एक कबड्डी के मैच का भी एहतमाम किया गया है। इस वक्त हम कबड्डी मैच वाले ग्राउंड में पहुँच चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जो हिंदुस्तान से यात्री आए हुए हैं वो भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। पाकिस्तान कबड्डी फैडरेशन ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਨੇ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿੱਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੱਕ ਆ, ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਆ, ਸਮਝਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਏਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ, ਦੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਰਾਇਲਸ ਬੈਲਜੀਅਮ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਔਰ ਰਾਇਲਸ ਕਿੰਗ USA कबड्डी क्लब, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ, ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਵੀਰ। ਅੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਧਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਬਰਸਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਤੇ ਹਿਜਰਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਲੱਖ ਭੁਲਾਇਆ
ਭਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਤੇ ਨੇੜ ਨਰੱਪਾ ਵਧਿਆ, ਕੁਝ ਤੇ ਆਸਾਂ ਪੁੱਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਤੇ ਵੈਰ ਦੇ ਨਾਗ ਮਧੀਜੇ, ਕੁਝ ਤੇ ਸਾਂਝਾਂ ਉੱਗੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਬਰੋ ਬਰਾਬਰ ਤੁੱਲੇ, ਕੁਝ ਤੇ ਸੰਗਲ ਵੱਜੇ ਰਸਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੁਝ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਮਨਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ, ਕੁਝ ਤੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬਲਦਾ ਸੀਨਾ ਠਰਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਥਈਆ ਥਈਆ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਤੌਣ ਬਲੋਈ। ਇਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ, ਸਾਂਝ, ਪਿਆਰ, ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਚਾਅ ਹੈ, ਲਾਡ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਔਰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਕੌਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੱਜ ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਸੋ ਥੈਂक्स, लव यू वेरी मच। जी, जैसा कि आपने सुना, ये कबड्डी के जो है वो कमेंटेटर भी हैं। इन्होंने पंजाबी अंदाज के अंदर जो अपने जज्बात का इजहार किया वो काबिल दीद है। और यहाँ पे हमारे जो हैं, इसके अलावा जो सिख भाई यहाँ पे जो 10 रोज़ा जो तकरीबात हैं बाबा जी गुरु नानक देव जी की जन्मदिन की, उसमें शमूलियत के लिए भी आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी, कैसे हैं? बहुत अच्छा जी, बहुत कैसा लग रहा है? बहुत सोहना जी, बहुत पहली दफ़ा आए हैं? हाँ जी, पहली दफ़ा है। आप कहाँ से आए हैं? मैं अमृतसर से आया जी। अमृतसर से आए हाँ हैं। जी। पहली दफ़ा पहुँचे हैं यहाँ पहली पे? दफ़ा आए। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत यहाँ के बढ़िया, इंतजाम कैसे लग रहे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ, बहुत बहुत शुक्रिया चैनल का। जी, जैसा कि आपने सुना, इनका यही कहना है कि यहाँ के जो इंतज़ामात हैं PMU की जानिब से, यानी कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट जो इदारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर की देखभाल के लिए और यात्रियों को तमाम तर सहूलियात फ़राहम करने के लिए बनाया गया है, उनकी जानिब से हर किस्म के जो हमारे सिख भाई यहाँ पे अपनी मजहबी रसूमात अदा करने के लिए आए हुए हैं, जो दर्शन के लिए आए हुए हैं, उनको प्रॉपर तरीके से हर किस्म की फैसिलिटी दी जा रही है। मैं इस वक्त जो है गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर के लंगर खाने में मौजूद हूँ, जहाँ सिख यात्री जो है उनके लिए लंगर का इंतजाम किया जाता है। ये अगर आप देखें तो यहाँ जितने भी बाबा जी गुरु नानक देव जी के की तकरीबात हुए शमूलियत के ज़रिए अपनी मजहबी रस्मात अदा करने के लिए और दर्शन के लिए पूरा साल जितने भी यात्री यहाँ गुरुद्वारा दरबार साहब आते हैं, उनके लिए दरबार की जानिब से लंगर का एहतमाम किया जाता है। यहाँ इस जानिब जो है गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर के साथ कोई किचन है, जहाँ पर जितने भी जैसे यात्री आते हैं वो बर्तन जो है यहाँ गुरुद्वारे के अंदर किसी चीज़ का कोई खाती जो है वो नहीं रखा गया, बल्कि यहाँ में जितने भी जो सिख यात्री यहाँ दर्शन के लिए आते हैं वो इसे अपनी इबादत का हिस्सा समझते हुए ये जितने भी जो बर्तन हैं, यानी कि अगर वो सिख यात्रियों का पहली संगत आई है, वो खाना खाकर चली गई है, तो उसके बाद जो नहीं आने वाली संगत है वो यहाँ पे अपना इसे भी मजीद वीज़ा के रूप में इन बर्तनों को यहाँ पर धोएंगे और उसके बाद जो उससे अगली संगत आएगी वो इसी तरह तरतीब से जो है वो बर्तन धोने का जो है फल चलता है। ये मेरे अकब के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे वो सिख आदमी खवातीन जो वो गुरुद्वारा दरबार साहब आती है, वो अपनी खुशी से यहाँ पर जितने भी से मुलासी आते हैं उनके लंगर के लिए जहाँ पे चपातियाँ बनाई जा रही हैं। और इन चपातियों की एक खास बात मैं आपको बताऊँ, यहाँ गुरुद्वारा दरबार साहब के बाहर
बाबा जी गुरु नानक देव जी का बहुत बड़ा एक ज़राई रकबा मौजूद है। उसके ऊपर जो भी गंदम पाठ होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर के अंदर पूरा साल सिख जो यात्री आते हैं उनके लिए चपाती बनाने के काम आती है। इस वक्त जो है मैं गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर से किचन में मौजूद हूँ। अगर आपको यहाँ नज़र आ रहा हो तो गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर के अंदर जो हमारी सिख बहनें यात्रा के लिए हिंदुस्तान से ज़िलिया वाघा बॉर्डर या करतारपुर कॉरिडोर गुरुद्वारा दरबार साहब पहुँचती हैं, वो अपनी रुचि से अकीदत के साथ गुरुद्वारा दरबार साहब के किचन के अंदर जमातियाँ बनाती। जितने भी सिख यात्री आते उनके लिए यहाँ पे जो भी काम होता है उसके लिए कोई भी शख्स किसी तनख्वाह पे नहीं रखा गया। यहाँ पे जो लोग बर्तन धो रहे हैं जैसे, इसी तरह यहाँ पे जो हमारी बहनें काम कर रही हैं वो अकीदत को साथ अपनी समझ लें कि इसको इबादत का हिस्सा समझते हुए ये काम गुरुद्वारा दरबार साहब के अंदर किया जाता है। इस वक्त हमारे साथ हमारी कुछ सिख बहनें मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि कैसी है। अच्छी है। कहाँ से आए हैं? यूएस तो अच्छा, हाँ जी। तो कब से आए हुए हैं? 3 वीक्स हो गया है। कैसा महसूस कर रहे हैं? बड़ा वधिया। शुरू तो चाहना सी कि ननकाना साहब जाइए पर पता नहीं सी किद्दां हाओ है ना, पर परमात्मा जी दी बड़ी कृपा हुई ते अचानक मैनू वीज़ा मिल गया, टूरिस्ट वीज़ा। मैं क्या चलो जिद्दां भी मैं जाना ही जाना है। सो आई फोर्स माई पेरेंट्स टू गो विद मी। सो वो भी मेरे नाल आए, हालांकि वो दूजी अरे इत्थे आ रहे हैं, पर बड़ा वधिया लग्या। किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं, सारे ने मोस्ट वेलकम किया। अपने जो है ना जो मुसलमान है ना पाकिस्तान, वो बहुत अच्छे है, दिल दे बहुत अच्छे है। सो बड़ा वधिया रहा। तो ये हमारे साथ एक और बहन मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे कि आप कहाँ से आए हैं? ਅਸੀਂ कैथल हरियाणा जिला पहली दफा आए कैथल। हैं? हाँ जी पहली दफा। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत वधिया वीर जी। यहाँ पे ये जो आप बाकी यात्रियों की खिदमत कर रहे हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे कि क्या फीलिंग्स है, कैसा महसूस करते हैं? ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਛਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੀਸ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਚੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਏ ਖਾਲੀ ना जाए, खाना खा के जाए। ये हमारे साथ जो है एक फैमिली भी मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि कैसे है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पहली दफा आए हैं? नहीं, मैं तो दूसरे टाइम आया हूँ, 25 साल बाद आया हूँ। 99 में आया था। अच्छा, हाँ। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले से बहुत चेंज है, बहुत अच्छा है। नई इमारत देख के कैसा लग रहा है? ये बहुत सुंदर, ये तो 2 साल पहले देखे 2 साल पहले देखे हैं ये। और यहाँ के इंतजाम कैसे हैं? बहुत अच्छे इंतजाम, अच्छे, बहुत अच्छा। पहले से बहुत ज़्यादा सुधार देखे हैं पहले से। तो कैसा पाकिस्तान की आवाम जो है उसकी जानिब से कैसा वेलकम मिला आपको? बहुत बहुत बता नहीं सकते, शब्दों में नहीं बयान कर सकते। अरे हम लोग यूपी से आए हैं, बरेली इंडिया। अच्छा। इंडिया यूपी बरेली। अच्छा, आप बजीरिया करतारपुर कॉरिडोर आए हैं या बागा के जरिए? बागा से आए हैं पूरे, अभी पंजाब साहब से होके आए हैं। जैसे पहले पूरे 10 दिन की जो तकरीबात हाँ, है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो ननकाना साहब, रोड़ी साहब, हाँ, सच्चा सौदा, हाँ, सारे गुरुद्वारे आपको। हाँ जी, हाँ जी। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे वहाँ पर डेरा साहब लाहौर। सही। हाँ, और जो एक गुरुद्वारा और रहता है जो आप बता रहे थे, रोड़ी साहब। रोड़ी साहब वहाँ भी, वाला क्या? हाँ, वो जाना है, वो जाना है अभी। जहाँ बाबा जी ने जो है वो इबादत की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये आप बताएं कैसा महसूस कर रही है? यहाँ पे बहुत अच्छा वेलकम करा है, बहुत इज्जत मान दिया है, संगत को बड़े प्यार से लंगर छकाया है, सेवा करी है, बहुत अच्छा करा है। बहुत देखिए जी, जैसे कि आप ये सुन रहे हैं कि यात्री बहुत ज़्यादा खुश हैं कि यहाँ पे इस किस्म के इंतजाम है पाकिस्तानी अवाम की जानिब से, ऐसा उन्हें वेलकम किया गया है। और हमारी एक और बहन यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। बहुत अच्छा देखभाल के रखो। जी हाँ जी, कैसा हाँ। महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, मोदी वाली फीलिंग आ रही है मेरे अंदर। इतनी सिक्योरिटी फोर्स मिली हमको, लग रहा मैं अपने देश की प्रधानमंत्री बन गई हूँ। बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। जितना खौफ डाला गया था ऐसा कुछ नहीं है, सब अच्छे हैं। इस वक्त जो है गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर के लंगर खाने के बाहर में मौजूद हूँ और हमारे साथ जो हैं वो कुछ सिख यात्री मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और इनसे जानते हैं। जी क्या हाल चाल है? बहुत वधिया जी, फर्स्ट क्लास, बहुत नज़ारा आ रहा है। तो पहली दफ़ा आए हैं यहाँ पाकिस्तान?
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ 14 ਤਰੀਕ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ 19 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ। नहीं तो आप समझते हैं कि यानी कि ये जो करतारपुर कॉरिडोर है तो इसके जरिए तो आना ज़्यादा आसान नहीं है। कॉरिडोर ਦੇ ਜਰੀਏ ਆਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। कॉरिडोर ਦੇ ਜਰੀਏ मैं 2 दफ़ा आ चुका करतारपुर साहब। अच्छा, करतारपुर पहले 2 दफ़ा आ चुके हैं। हाँ, बजरिया वीज़ा पहली दफ़ा आए हैं। ਵੀਜ਼ਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੱਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਤਮੰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰਧਾਮ ਬਣੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖੇ, ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਪ? ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ YouTube ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ABC ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆ, ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ इंडिया वाले पासे फाजिलका है। और भी हमारे साथ यहाँ पे दूसरे भाई हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप बताइएगा कैसा महसूस कर रहे हैं बाबा जी की जो 555वें जन्मदिन की तकरीबात हैं, इसका हिस्सा बन के आपको कैसा महसूस हो रहा है? पहली दफ़ा हम पिछले साल करतारपुर साहिब आए थे, तो यहाँ में दर्शन किए, बड़ा अच्छा लगा। फिर हमने सोचा भी क्यों ना पाकिस्तान में घूमा जाए, तो इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। 555वां जन्मदिन है जो गुरु नानक देव जी का, उस पे उसका अगर हिस्सा बने तो बड़ा ही अच्छा लगेगा। तो हमने जो कोशिश करके देखी, चलो कोशिश करते हैं वीज़ा लगवा के देखते, तो हमारा वीज़ा लग गया। उसमें क्या हुआ कि वीज़ा लगने के बाद जो हमने दर्शन किए गुरुद्वारों के, वो बड़े ही आनंद हुआ। यहाँ की जो पुलिस है, यहाँ की जो प्रशासन है, और जो दोनों सरकार, भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार दोनों की पहलकदमी की वजह से हम यहाँ पहुँचे हैं। दोनों सरकारों का दिल से धन्यवाद है। और जो यहाँ की आवाम है बड़ी खूबसूरत है, उनकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, यहाँ का जो रहना सहना वो भी अच्छा है। हमें लगा नहीं है कि हम ये पाकिस्तान में आए हैं, ऐसा लगा कि हम अभी भी पंजाब में ही घूम रहे हैं। बिल्कुल ऐसे देखिए जी, ये भी पंजाब है, वो आपका पंजाब है, हम लोगों का रहना, खाना पीना, उठना बैठना, बहुत चीज़ें हमारी मुमासलत रखती हैं। जैसे आप कह रहे थे कि हम पाकिस्तान जाएंगे, तो पाकिस्तान जब आप वीज़े के ज़रिए आए हैं तो पाकिस्तान घूम के क्या आपको महसूस हुआ? हम पाकिस्तानी जो आवाम है उसके हवाले से कैसा आपको रिस्पांस मिला? बड़ा अच्छा रिस्पांस। ननकाना साहिब की अगर बात करें तो ननकाना साहिब के गुरुद्वारे का तो चलो ठीक है, पर वहाँ पे जो लोग मिले, सिंध के लोग खासकर मिले, खास बात ये लगी कि वो गुरु नानक देव जी में श्रद्धा बहुत रखते हैं, उनका प्यार बहुत है। हम हैरान हुए, जो हिंदू लोग हैं या चाहे मुस्लिम लोग हैं, सब ने सेवा ऐसे की, लग ही नहीं रहा था कि कोई हम किसी और मुल्क में आए हैं। और जो हम सुना है कि लाहौर अभी हमने पहुँचना है, पर लाहौर के बारे में सुना बहुत है कि वहाँ की आवाम भी बड़ी खूबसूरत है। उनकी जो पंजाबी है, पंजाबी तो एक ही है पर थोड़ी सी ज़बान में फ़र्क है, तो वो जो अल्फाज है उनके वो बड़े खूबसूरत है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा जो है वो सिख यात्री जो है बाबा जी गुरु नानक देव जी के जो 555वें जन्मदिन की तकरीबात हैं उसमें शमूलियत के लिए कुछ लोग बजरिया वाघा बॉर्डर वीज़ा के ज़रिए यहाँ पे पहुँचे हैं, और बहुत से सिख यात्री करतारपुर कॉरिडोर के ज़रिए पहुँचते हैं। अभी मज़ीद हम अपने जो सिख भाई हैं उनसे बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे। जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं पहले अपना नाम दसदा भी, मेरा नाम निर्मल सिंह माला, इंडिया से डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर शहर बटाला, बाबे नानक दे सहुरिਆਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਲੰਘੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਵਾ ਇਹ ਢਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸਾਡਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਬਣਨ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਰਤ ਢਾਈ ਜਾਵੇ। ये और भी भाई हैं जी, आप बताएं।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਗਲਫ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਾਂ ਦੁਬਈ ਵਗੈਰਾ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਲਾਹੌਰ ਬਾਰੇ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ, ਇਹਨਾਂ ਅਟਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲ ਵਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ, ਸਾਰੀ ਵਰਲਡ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਏ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਰਮੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਜੋ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ETBP ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਨੇ। ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। और हमारे पास एक बड़े बुजुर्ग यात्री हैं, इनसे भी जानते हैं जी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਬੜੀ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ, ਬੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 34% ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। 2463 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 700 ਦੇ 63 ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਆ। लेकिन इस दफा 3000 वीजे ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟੋਟਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਟੋਟਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਟੋਟਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 200 300 400 500 ਹੋਏਗੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਜਿਹਦਾ ਕਿ 5000 ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਜੇ 5000 ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 5000 ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 5000 ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ MOU ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ 5000 ਬੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਵੀ 5000 ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ MOU ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ PMU, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 5000 ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, शुक्रिया, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मज़ीद यहाँ पे लोग जो है वो बहुत सी बातें करना चाह रहे हैं, लेकिन वक्त की कमी के बायस हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा लोगों की राय है वो हम ले सकें। अभी हमारे साथ एक और जो है वो यात्री मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी कैसे हैं? ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਗੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਨਮਸਤਕ ਹੋਏ हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी दोवां देशों का। जी जैसा कि आपने सुना, यहाँ मुख्तलिफ लोगों की राय आपने सुनी। यहाँ बल्कि जो कई सिख यात्री हैं उनका कहना था कि जब हम गुरुद्वारा ननकाना साहब पहुँचे तो वहाँ सिंध से आए लोगों का बड़ा जो है वो प्यार और बड़ी श्रद्धा थी बाबा जी गुरु नानक देव जी के लिए। असल में यहाँ बाबा जो गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर है, यहाँ पे भी पूरा साल यहाँ की जो लोकल आबादी है और मुस्लिम जो है मुख्तलिफ जगहों से यहाँ आकर बाबा जी गुरु नानक देव जी के मज़ार पर फातिहा पढ़ते हैं और दुआया तकरीबात का सिलसिला जारी रहता है। ये इस बात का अक्कास है कि हस्ती जो ज़ात पात, ऊंच नीच, रंगो नस्ल, फ़िरका वारियत, लिसानियत की सोच से निकलकर भाईचारे और सिर्फ इंसानियत का दर्स देती है, वो हर मज़हब के लोगों के लिए इंतहाई काबिल एहतराम गिनी जाती है। बाबा जी गुरु नानक देव जी ने
इंसानियत और भाईचारे का दर्स दिया। सिख मज़हब के लोगों के साथ साथ मुस्लिम आबादी, हिंदू मज़हब के लोग भी बाबा जी गुरु नानक देव जी के जो है वो इस प्रचार को लेके, उनके उस पैगाम को लेके दुनिया के अंदर भाईचारे, यकसानियत और इंसानियत को लेकर हर बंदा जो है वो बाबा जी गुरु नानक देव जी को अपना बहुत ही एक अजीम हस्ती गर्दानता है। इस वक्त हमारे साथ मिनिस्टर जो है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री चौधरी शाफे हुसैन और पंजाब के जो माइनॉरिटीज़ के मिनिस्टर हैं रमेश सिंह अरोड़ा, वो भी इस वक्त गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर में मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। जी कैसे हैं? जी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। आज यहाँ पे बाबा जी गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के जो मौका के ऊपर बहुत से सिख यात्री आए हैं। इस हवाले से जो इंतज़ामात हैं इसमें हमारी सिख यात्रियों से बहुत डिटेल बात हुई। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश नज़र आए हर एतबार से। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, ये हम पिछले 2 माह से तकरीबन इस पर हमारी डिफरेंट मीटिंग्स हुई हैं, कि इसमें वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स जो है वो, और इसके साथ साथ हुकूमत पंजाब, पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सब मिल के हमारी एक ही कोशिश होती है कि जो हमारे यात्रु साहबान आते हैं उनकी बेहतर से बेहतर खिदमत की जाए। आज यात्रु करतारपुर साहब में पहुँचे हैं और करतारपुर साहब के चीफ एग्जीक्यूटिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के अबू बकर कुरैशी साहब यहाँ पे मौजूद है। ये 10 दिन का इनका क़याम होता है, लेकिन अब ये सिर्फ भारतीय यात्री नहीं है, इसमें 6,500 से ज़्यादा डायस्पोरा होकर जा चुका है और तकरीबन 40 से 45 हज़ार हमारे सिंधी बहन भाई हैं, नानक नाम लेवा संगतें वो जा चुकी हैं। अभी 2,500 संगत इस वक्त वो मौजूद है जो भारत से आई है। सो हमारी हमेशा कोशिश यही रहती है कि जो हमारे भारतीय यात्री आते हैं, जब वो आएँ तो हमें, अभी मैं और चौधरी शाफी साहब आ रहे थे तो हमें एक भारतीय यात्री ने, जो इसके अंदर की आवाज़ थी, उसने एक बात में सारे कूजे को समेट दिया, कूजे में बंद कर दिया समंदर को, पाकिस्तान जिंदाबाद कह के। तो इसका मतलब हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही कि जो हमारे यात्री हैं उनकी इस तरीके से खिदमत की जाए, उनकी इस तरीके से देखभाल की जाए, उनकी सेवा की जाए कि जब वो यहाँ से जाएं तो हमारा ही यहाँ से अच्छी यादें लेके जाएं, पाकिस्तान के एम्बेसडर बन के जाए। बहुत सारी ऐसी कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान के बारे में एक मनफी राय रखती हैं, और आज जो चौधरी शाफी साहब ने एक बहुत बड़ा काम किया मोहब्बत बिखेरने का, अमन के लिए, कि आज कबड्डी फेडरेशन के चौधरी साहब सरबराह भी हैं, कबड्डी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मिल के आज आगाज़ किया गुरु नानक देव जी कबड्डी फेस्टिवल का, और इंशाल्लाह ये आने वाले दिनों में ये और एक्सपैंड होगा। यहाँ पे चैम्पियनशिप होगी, चीफ एग्जीक्यूटिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट भी इस पर हमारी कोशिश ये कि इस करतारपुर सबसे हमेशा जब पैगाम जाए, मोहब्बत और अमन का पैगाम जाए और आने वाली संगत हमेशा खुश होकर यहाँ से जाए। जी इस वक्त हमारे साथ चौधरी शाफे साहब भी मौजूद हैं। ये सर बताइएगा कि आज जो आपने ये कबड्डी के हवाले से, जैसे रमेश सिंह अरोड़ा साहब जो है वो बता रहे थे कि बहुत अच्छा आपका इक़दाम था, तो क्या कहेंगे आप? जी, आज जो इधर करतारपुर में आया हूँ और पहले भी मैं आ चुका हूँ और हमेशा बड़ी खुशी होती है जब भी यहाँ पर चक्कर लगता है। इधर सीओ साहब भी मौजूद हैं, बड़ा अच्छा यहाँ पर लंगर का इंतज़ाम है, सफाई का बड़ा अच्छा निज़ाम है, बड़ा अच्छा एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है। और मैं समझता हूँ कि जो आपने बात की है कबड्डी के हवाले से, ये करतारपुर की तारीख़ में पहली बार ये कबड्डी मैच आज हुआ है और इसमें जो मिनिस्टर मिनॉरिटीज़ हैं रमेश सिंह साहब, इनके साथ बड़ी अच्छी हमारी कोऑर्डिनेशन रही। हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि इसको भी ना कराया जाए, स्मॉग है, हमने पर चेक किया तो स्मॉग तो इतनी नहीं थी, तो हम तो फुली इसमें रेडी थे कि हर सूरत में जो है ये बाबा गुरु नानक के मौके ऊपर ये जो कबड्डी का मैच है इसका लाजमी होना ज़रूरी है। और इंडिया को भी हमने दावत दी कि वो अपनी कबड्डी की टीम यहाँ पर भेजें, मगर जिस तरह क्रिकेट की टीम को इंडिया ने इजाज़त नहीं दी, इस तरह आज कबड्डी की टीम को भी इंडिया ने इजाज़त नहीं दी। तो फिर इसलिए हमने फिर 2 अलग टीमें बना ली पाकिस्तानी क्लब्स की, और उसमें जो फॉरेन क्लब्स हैं वो भी इन्वॉल्व थे। तो ये पर आज का मैच जो है ये यूएसए क्लब और जो बेल्जियम का क्लब है उनके दरमियान में ये मैच हुआ। और ये जो है कबड्डी का जो आज करतारपुर में मैच हुआ है, ये हम हर साल जो है हमने इरादा किया है कि इसको किया जाए, और अगर डिमांड होए तो इसको साल में 2 बार या 3 बार भी किया जा सकता है। और जो हमारे दादा हैं चौधरी ज़ुरुल्लाह शहीद साहब और चौधरी शुजात हुसैन साहब का हमेशा सिख भाइयों के साथ ताल्लुकात रहे हैं, और हमारे घर भी आके जो है इनका रहना होता है। और आइंदा जो है मैं समझता हूँ कि
जो सिख भाई हैं, सिख कम्युनिटी है, और इनके साथ जो है ताल्लुकात हमें बढ़ाने चाहिए। और इसी तरह ही मैं समझता हूँ कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात जो हैं वो मज़ीद बढ़ेंगे। जी, जैसा कि आपने सुना, पहले ही जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, करतारपुर कॉरिडोर को लेके जो PMU एक इदारा बनाया गया है, जिसका मकसद गुरुद्वारा दरबार साहब की देखभाल और यात्रियों को हर किस्म की सहूलियात फराहम करना है। इसके अलावा इस दफ़ा गुरुद्वारा जो श्री दरबार साहब है, इसमें वफाकी लेवल के ऊपर जो चौधरी शाफी हुसैन हैं, उनकी जानिब से कबड्डी का जो है वो खेल, उसका बाकायदा से अहतमाम किया गया। उनका कहना था कि बाकायदा वफाकी लेवल के ऊपर इंडिया को दावत दी गई थी कि वो अपनी टीम भेजे और पाकिस्तान की नेशनल टीम भी जो है वो यहाँ पर कबड्डी के मैच में शामिल हो। लेकिन अगर इंडियन टीम नहीं भी आई तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से और कबड्डी फेडरेशन की जानिब से जो है यहाँ पे कबड्डी के मैच का ना सिर्फ एहतमाम किया गया, बल्कि चौधरी शाफी हुसैन का ये भी कहना था कि हमारा इरादा है कि ये प्रोग्राम हर साल चलता रहे, और अगर बल्कि ये प्रोग्राम ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों की पसंद में चलता गया तो हम इसको साल में 2 से 3 बार भी इस फेस्टिवल को करवा सकते हैं। और इसके अलावा जो माइनॉरिटीज़ के मिनिस्टर हैं, जो रमेश सिंह अरोड़ा हैं, उनका कहना था कि विफाक की जानिब से, पंजाब की जानिब से जैसे इस फेस्टिवल को लेके ये जो 555वें जन्मदिन की तकरीबात हैं बाबा जी गुरु नानक देव जी सरकार की, उनके लिए बहुत ज़्यादा मीटिंग्स और बहुत ज़्यादा आपस में कोऑर्डिनेशन के बाद इस प्रोग्राम की जो मैनेजमेंट है, जो इंतज़ामिया है, उनको ये इंश्योर करने के लिए कहा गया कि कोई भी जो यात्री है, चाहे वो वाघा बॉर्डर के ज़रिए यहाँ पे पहुँचे या वो बजरिया करतारपुर बॉर्डर यहाँ पे पहुँचे, उनको हर सहूलत जो है वो मिलनी चाहिए। किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी मामले के अंदर कोई एक 0% जो है वो शिकायत सुनने को नहीं मिलनी चाहिए। और इसके अलावा जो वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर हैं चौधरी सालक हुसैन साहब, उनका भी इस सारे मामलात के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि इस दफ़ा क्योंकि बाबा जी गुरु नानक देव जी की 555वीं जन्मदिन की तकरीबात हैं और इस दफ़ा सिख यात्री जो हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी, इस हवाले से उन्होंने हर मामलात के अंदर जो है सूबाई जो माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं उनके ज़रिए, बाकी जो इंतज़ामिया है, जो PMU के CEO हैं, उनसे हर वक्त कोऑर्डिनेशन रखते हुए इन सारे जो मामलात हैं, आखिरी 3 रोज़ा जो तकरीबात हैं, इसमें हर तरह की सहूलियात फराहम करने का उन लोगों की जानिब से पूरे इंतजामात भी किए गए हैं। और चौधरी सालक हुसैन साहब ने ये इंश्योर किया है कि जो भी सिख यात्री पाकिस्तान आए, उन्हें किसी भी किस्म का, किसी भी हवाले से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। यहाँ जो है लंगरों न्याज के सिलसिले के अंदर जो है एक बड़ी ख़ास चीज़ हमें नज़र आ रही है कि यहाँ पे एक बड़े से कड़ाह के अंदर जो है वो दूध गर्म किया जा रहा है। और इस वक्त जो है हमारे साथ यहाँ पे सरदार इंद्रजीत सिंह मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि ये इतना बड़ा जो कड़ाह रखा गया है ये किस मकसद के लिए रखा गया है। जी कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक जी। सब तो पहले तो मैं जी देशां विदेशां 'ਚ ਵਕਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 555ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਵਧਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਵਾਘੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਹੀ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁੱਧ ਜਲੇਬੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਧੁੰਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਠੰਡ ਹੈ। ਸੋ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੱਚ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਰਮ-ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਜਲੇਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੂਹਾਨੀ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਸਕੂਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ
ਪੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਜੀ। ਜੋ ਇਹ ਜੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਉਹੀ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਹੀ ਲੰਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जी, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि इस दफ़ा जो बाबा जी का 555वां जन्मदिन है, उस मौका के ऊपर मौसम की मुनासबत के एतबार से गर्मा गर्म दूध और जलेबियों का भी अहतमाम किया गया है, ताकि जो हमारे सिख भाई यात्रा के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं वो अपने रूहानी सुकून के साथ साथ यहाँ पे गर्मा गर्म दूध जलेबी खाकर अपना जिस्मानी सुकून भी हासिल कर सकें। जी, मेरे अकब के अंदर इस वक्त आप जो मज़ार देख रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ 1539 के अंदर जो कपड़ा और फूल मुसलमानों के हिस्से आए तो उन्होंने तदफीन करके यहाँ बाबा जी गुरु नानक देव जी का मज़ार बना दिया। 1539 से आज तक यहाँ पर जो मुकामी मुसलमान हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ़ शहरों से, इवन सिंध से बहुत से लोग आकर यहाँ पर फातिहा खानी करते हैं और ये सिलसिला 1539 से चला आ रहा है। इसके अलावा इस गुरुद्वारा दरबार साहब के अंदर 3 कुएं भी हैं जिनकी एक अपनी अलग से तारीख़ है। सिख मज़हब के लोगों के लिए ये कुएं जो हैं इंतहाई अकीदत और एहतराम की जगह बनते हैं। अभी यहाँ मैं आपको एक कुएं के बारे में अगर बताऊँ तो ये आपको जो सामने कुआं नज़र आ रहा है, इस कुएं के हवाले से एक अलग किस्म की कहानी है। चलिए चलते हैं, आपको मैं पहले ये कुआं दिखाता हूँ फिर इसके बारे में बताता हूँ। ये जो एक कुआं है इसके हवाले से एक अलग तारीख़ है। सिख मज़हब के जो मानने वाले हैं उनका कहना है कि 1971 के अंदर जब पाक बहारत जंग हो रही थी तो जो भारतीय फ़िज़ाइया है उनके तैयारों की जानिब से जब पाकिस्तान पर बमबारी की गई तो यहाँ करतारपुर के अंदर भी भारतीय फ़िज़ाइया की जानिब से बमबारी की गई, जहाँ जिसमें से एक जो बम है यहाँ गुरुद्वारा करतारपुर आया, मगर इस कुएं ने वो अपने अंदर समो लिया जिससे वो बम फटा नहीं। वो आज भी ज़िंदा इसी गुरुद्वारा करतारपुर के अंदर जो है वो मौजूद है। ये वो जगह है जहाँ पर 1539 के अंदर जो चादर का बकिया टुकड़ा और फूल जो है उस वक़्त जो यहाँ पे हिंदू आबाद थे उनके हिस्से में आया, उन्होंने अपने मजहबी अकायद के मुताबिक उस टुकड़े और फूलों का संस्कार करके यहाँ बाबा जी गुरु नानक देव जी की समाधि बना दी। अब हम गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर की ऊपर वाली मंजिल में आ चुके हैं, जहां सिख मज़हब के मानने वाले अपनी सबसे मुक़द्दस किताब गुरु ग्रंथ महाराज को रखकर अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हैं और अपनी मजहबी इबादत करते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।